Hello my dear student, today we see the topic rationalization of denominators. Before we see the rationalization of denominators, first we see the example number 16. In previous class we study about how we can add, how we can multiply and how we can subtract the rational number with irrational numbers, and how can add rational number with irrational numbers, and how can multiply the rational with irrational number. See example number 16. Simplify the following expressions. Here simplify word is used. Simplify the following expressions. So what is the meaning of the simplify? Simplify means write the quotients in rational number or irrational number forms. First question here, 5 plus under root 7 multiply with 2 plus under root 5. Second, 5 plus under root 5 multiply with 5 minus under root 5. Third, under root 5 plus under root 7 whole square. Under root 4th, under root 11 minus under root 7 multiply with under root 11 plus under root 7. So here example number 1, example number 16, sub question 1, 5 plus under root 7 multiply with 2 and plus under root 5. So how can multiply? The first, we write these quotients into simple rational number or simple irrational number. First we solve the first question. 5 plus under root 7 multiply with 2 plus under root 5. Here 5 plus under root 7 दोनों यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है. 5 plus under root 7 multiply with 2 plus under root 5. 5 plus under root 7 written in bracket और 2 plus under root 5 भी ब्रैकेट में लिखा है, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है. कुछ नहीं इसका मीनिंग मल्टीप्लाई. सो हाउ कैन मल्टीप्लाई 5 plus under root 7 with 2 plus under root 5. मान ये लेते हैं कि ए फर्स्ट बाइनोमियल और ये सेकेंड बाइनोमियल. तो हम देख चुके हैं कि हाउ कैन मल्टीप्लाई द बाइनोमियल विथ बाइनोमियल एक्सप्रेशंस. सो फर्स्ट 5 फर्स्ट मल्टीप्लाई विथ 2, 5 into 2 plus plus 5 again multiply with under root 5. तो 5 multiply with under root 5 plus under root 7 multiply with 2. Then again under root 7 is multiply with here plus then under root 7 multiply with under root 5. Then next 5 to the 10 plus 5 into under root 5 under root 5, because 5 is a rational number and under root 5 is a irrational number, plus under root 7 into 2 under root 7. अंडर रूट 7 इंटू 2 अंडर रूट 14 नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट 7 इरेशनल है और 2 रेशनल है. प्लस अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 इंटू 5, दोनों में अंडर रूट है. बाई आइडेंटिटीज अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इक्वल टू, वी राइट दिस ए इंटू बी होल अंडर रूट ए इंटू बी. देन 10 plus 5 under root 5 plus 2 under root 7 plus 7 5 जा 35 under root 35. 10 plus 5 under root 3 10 plus 5 under root 5 plus 2 under root 7 plus under root 35. ये आगे रेड नहीं होगा क्योंकि यहाँ 10 is a rational number, 5 under root 5 is a irrational number, 2 plus under root 7 is a irrational number and under root 35 is also irrational numbers. यहाँ irrational number नहीं है, यहाँ rational number 3 है, under root 5 है, यहाँ rational number under root 7 है, यहाँ पर irrational number under root 35 है. इन सभी टर्म्स का irrational number सेम नहीं है, इसलिए आगे क्या होगा, ये 8 नहीं होगा. So this is the required answer.
Second, 5 plus under root 5 multiply with 5 minus under root 5. 5 plus under root 5, 5 minus under root 5, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5, यहाँ अंडर रूट 5, यहाँ पर भी अंडर रूट 5 है, तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर हो रहा है a प्लस b मल्टीप्लाई विथ a माइनस b. व्हेन वी a प्लस b मल्टीप्लाई विथ a माइनस b, हम वी कैन राइट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो यहाँ पर a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू अंडर रूट 5 है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको 5 होल स्क्वायर माइनस बाय दिस फार्मूला अंडर रूट 5 होल स्क्वायर. देन 5 स्क्वायर मीन्स 5 5 जा 25 माइनस अंडर रूट 5 होल स्क्वायर मीन्स 5. क्यों ऐसे? सिंस अंडर रूट a होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट a इंटू अंडर रूट a, देन वी राइट a. So 25 minus 5 will be 20. 20 is the required answer. We solve this question by another method also. We solve this question by another method. Here 5 plus under root 5 into 5 minus under root 5. 5 first multiply with 5. 5 5 ja 25 minus, then 5 multiply with under root 5, 5 under root 5 plus under root 5 multiply with 5, 5 under root 5 minus, plus into minus, minus under root 5 multiply with under root 5, under root 25, then 25 माइनस 5 अंडर रूट 5 प्लस 5 अंडर रूट 5, दोनों का सेमी रेशनल नंबर है अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, बट 5 and 5 बोथ कैंसिल, वी गेट 0. माइनस अंडर रूट 5 मीन्स 5 इक्वल टू 25 माइनस 5 20. 20 is the required answer. So we solve this question by identity method, a plus b into a minus b. We see the next. Third, under root 5 plus under root 7 whole square. Under root 5 plus under root 7 whole square. We write this as a under root 5 plus under root 7 multiply with under root 5 plus under root 7. Here under root 5 plus under root 7 multiply with under root 5 plus under root 7 means a plus b into a plus b. Here a plus b whole square है, so by using identity number first, a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square, b square. So here a equal to under root 5 and b equal to under root 7. Under root 5 plus under root 7 whole square is equal to a plus b whole square equal क्या होता है यहाँ से a square plus 2ab, 2 into a into b plus b square. तो फर्स्ट a इक्वल टू अंडर रूट 5 है, तो हम यहाँ करेंगे अंडर रूट 5 होल स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे इंटू a इक्वल क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 एंड b इक्वल टू अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 होल स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 5 होल स्क्वायर मीन्स अंडर रूट a होल स्क्वायर मीन्स 5 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 7. ये 2 तो बाहर रहेगा क्योंकि 2 इज ए रेशनल नंबर. अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 7 अंडर रूट 35, 5 7 35. ये 2 क्यों मल्टीप्लाई नहीं हुआ क्योंकि 2 यहाँ पर ये रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है, ये स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं है. प्लस 7 अंडर रूट 7 होल स्क्वायर, वी नो अंडर रूट 7 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 7. क्यों होगा यहाँ से सिंस वी नो दैट अंडर रूट
a whole square equal to a. दे इक्वल 5 प्लस 2 अंडर रूट 35 प्लस 7 हो रहा है. 5 is rational number, 7 is rational number, but 2 under root 35 is a irrational number. It is the multiplication of rational with irrational. So 5 प्लस हम 7 पर लिख देंगे प्लस 2 अंडर रूट 35 इक्वल टू 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा यहाँ से 12 प्लस 2 अंडर रूट 35. एंड ये दोनों आगे ऐड नहीं होगा क्योंकि 12 इज ए रेशनल नंबर and 2 is a rational number, but with multiply with under root 35, then 2 under root 35 is a irrational number. So this is the required answer. Fourth, under root 11 minus under root 7 multiply with under root 11 plus under root 7. अंडर रूट 11 यहाँ पर है, यहाँ पर अंडर रूट 11 है, अंडर रूट 7 यहाँ पर भी अंडर रूट 7 है. सो ये a माइनस b इंटू a प्लस b. सिंस a माइनस b इंटू a प्लस b इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ये दोनों इसमें आइडेंटिटी फिट हो रहे हैं. व्हेन वी कंपेयर दिस, हम इसको तुलना करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, a का वैल्यू अंडर रूट 11 और b का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 7. So under root 11 minus under root 7 multiply with under root 11 plus under root 7, we get a square. A means under root 11 whole square माइनस हो रहा है, हम लिखे माइनस, यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 7 होल स्क्वायर. अंडर रूट 11 होल स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा 11 माइनस अंडर रूट 7 होल स्क्वायर मीन्स 7. क्यों होगा ये, सिंस हम जानते हैं अंडर रूट a होल स्क्वायर इक्वल टू a. सो 11 माइनस 7 की कितना हो जाएगा यहाँ से 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर. सो वी सॉल्व दिस टाइप क्वेश्चंस बाय यूजिंग आइडेंटिटी. आइडेंटिटी मीन्स आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, आइडेंटिटी नंबर सेकंड, आइडेंटिटी नंबर थर्ड. आइडेंटिटी फर्स्ट इज a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सेकेंड आइडेंटिटी a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. थर्ड आइडेंटिटी a प्लस b मल्टीप्लाई विथ a माइनस b, देन देयर आंसर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. So we see the main topic of this chapter, rationalization of denominator. Rationalization of denominator. So what is the meaning of rationalization of denominator? क्या होता है rationalization of denominator? मान लो कोई सपोज कोई इरेशनल नंबर है, जैसे 1/√2 और 2/3 अंडर रूट 2, 4/9 प्लस अंडर रूट 2, 5/√3 माइनस अंडर रूट 5. इन फर्स्ट irrational number 1/√2, here numerator is 1 and denominator is under root 2. In this denominator under root 2 is a rational number. So what is the answer of 1/√2? हम इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या होगा कि कैसे हम 1 को अंडर रूट 2 से डिवाइड करेंगे. सेकेंड देखिए यहाँ पर 2/3 अंडर रूट 2, तो 1/3 अंडर रूट 2 1 इज रेशनल नंबर बट 3 अंडर 2 is a irrational number. Here 4/9 plus 2 under root 2, तो 9 plus under root 2 is a irrational number, but 4 is a rational number. In fourth 5 is a rational number, but under 3 minus under 5 is also irrational number. In these all irrational numbers, their denominators are irrational number. सो वी चेंज, तो हम क्या करेंगे, जैसे 1/√2 इरेशनल नंबर है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर अंडर रूट और स्क्वायर रूट और इरेशनल नंबर है, तो हम इसको
रेशनल में चेंज करेंगे। रेशनल नंबर में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, when we change this irrational number into rational numbers we multiply numerator and denominator of this irrational number by any number. So we convert the process of converting it to an equivalent expression whose denominator is a rational number is called rationalizing the number. यहाँ पर 1/√2 है, तो जैसे हम इसके डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, रेशनल नंबर में चेंज करेंगे, इस √2 को रेशनल नंबर में चेंज करेंगे, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, द कन्वर्टिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स इनटू द डिनोमिनेटर्स रेशनल नंबर्स इज नोन एज रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ इरेशनल नंबर। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे इरेशनल नंबर्स को, इसके डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में चेंज करेंगे। व्हेन वी चेंज द डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर दिस प्रोसेस इज नोन एज रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। व्हेन वी रिमूव दिस स्क्वायर रूट, तो फर्स्ट वी फाइंड द रेशनलाइजेशन फैक्टर। हम इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जैसे कोई मान लो सपोज नंबर देख लेते हैं पहले, एनी मान लो 1/√a के फॉर्म में, तो हमको एक इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर निकालना है जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर √a है तो हम क्या करेंगे, इसको अंडर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/√a इंटू √a अपॉन √a। So this √a is a rationalization factor of the 1/√a। मान लो कोई ऐसा होता है 1/a√b, यहाँ पर √a था, अब यहाँ पर a प्लस √b है, यहाँ पर सम हो रहा है, तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, अगर ये प्लस होता है तो उसका रेशनलाइजेशन फैक्टर हो जाएगा a minus √b upon a minus √b means the rationalization factor of 1/√a is √a, but the rationalization factor of 1/a plus √b is a minus √b। अगर a plus √b हो रहा है तो उसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, a minus √b होगा। मान लो यही ऐसा हो जाता 1/a minus √b, तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, ये माइनस को हम चेंज करेंगे प्लस में, ये होगा a प्लस √b इज द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 1/a minus √b। तो सो वी चेंज द डिनोमिनेटर्स इरेशनल नंबर्स इनटू रेशनल नंबर, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेशनलाइजेशन ऑफ द denominators, and we multiply a number is known as rationalization factor. So how can rationalize 1/√2? So how can rationalize 1/√2? 1/√2. We find the rationalization factor of √2. √2 का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, √2 ही होगा, तो ये उसको हम करेंगे यहाँ से 1/√2 इक्वल टू 1/√2 मल्टीप्लाई विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √2। तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विथ डिनोमिनेटर, 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे √2 के साथ, तो 1/√2 कितना हो जाएगा, √2, क्योंकि 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा, यहाँ पर 1 ही हो जाएगा, √2 इंटू √2 ये हो जाएगा √4 एंड √2 अपॉन √4 मीन्स 2। सो देखिए यहाँ √2 क्या था, इरेशनल था, अब हम इसको इक्वल में चेंज किए तो क्या हो गया, यहाँ पर 2 रेशनल में हो गया। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। सेकेंड देख लेते हैं, सेकेंड वन 2/3
3 under root 2. So what is the rationalization factor of 2 upon 3 under root 2? तो यहाँ पर अंडर रूट 2 नहीं होगा, हम क्या करेंगे, इसको 3 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई विथ 3 अंडर रूट 2 अपॉन 3 अंडर रूट 2। नेक्स्ट वन, 2 मल्टीप्लाई विथ 3 6 अंडर रूट 2 अपॉन 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई विथ 3 अंडर रूट 2। 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 अंडर रूट 4 इक्वल टू 6 अंडर रूट 2 अपॉन 9 इंटू अंडर रूट 4 मीन्स 2, देन 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 equal to under root 2 upon 3. We change this irrational number into rational number. 4 upon under root 2 plus 9. So how can I find the rationalization factor of under root 2 plus 9? Under root 2 plus 9 हो रहे हैं, under root 2 plus 9, तो प्लस क्या करेंगे हम, चेंज करेंगे माइनस में जाएगा यहाँ से। So the rationalization factor of under root 2 plus 9 is under root 2 minus 9। तो हो जाएगा यहाँ से 4 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई अंडर रूट 2 माइनस 9 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 9 इक्वल, यहाँ क्या करेंगे, 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 2 माइनस 9 के साथ। ये अंडर रूट 2 माइनस 9 इज एक्सप्रेशन बट बाइनोमियल हैविंग 2 टर्म्स। हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई विथ अंडर रूट 2 माइनस 9 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 9 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 9। हियर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है a प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 9 अपॉन बाय यूजिंग द आइडेंटिटी नंबर थर्ड a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर इक्वल टू 4 अंडर रूट 2 माइनस 9 अपॉन अंडर रूट 2 होल स्क्वायर मीन्स 2 माइनस 9 स्क्वायर मीन्स 81। So next 4 into under root 2 minus 9 upon 2 minus 81 minus 79. So what is the answer? minus 9 minus 79। तो माइनस डिनोमिनेटर में तो क्या करें, उसको हम पॉजिटिव लाएंगे, तो माइनस 4 मल्टीप्लाई विथ अंडर रूट 2 माइनस 9 अपॉन 79. So this is the required answer. The example number 17, rationalize the denominator 1 upon under root 2. So here rationalization, irrational number is 1 upon under root 2. So what is the rationalization factor? Under root 2. What is the rationalization factor of under 1 upon root 2? तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में अंडर रूट 2 है, तो यही क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इज द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 2। रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, हम इस 1 अपॉन अंडर रूट 2 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वही उसका रेशनलाइजेशन फैक्टर है। तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 का रेशनलाइजेशन फैक्टर अंडर रूट 2 होगा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई विथ अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई विथ अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई विथ अंडर रूट 2 इंटू 2 इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 2 अंडर रूट 4 अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 4 मीन्स 2। So under root 2 upon 2 is the required answer. Example number 18, rationalize the denominator of 1 upon 2 plus under root 3. So we change the denominators 2 plus under root 3 into rational. So
1/2 plus under root 3 equal. Here denominator is 2 plus under root 3. Irrational number we change this 2 plus under root 3 into rational. So we multiply by which number? Means find the rationalization factor. तो 2 प्लस अंडर रूट 3 है यहाँ पर, तो इसको बीच में प्लस को चेंज कर देंगे, क्या करेंगे बीच में माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल 1 मल्टीप्लाई विद दिस 2 माइनस अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा ये 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3. यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है, तो बाई यूजिंग आइडेंटिटी नंबर थर्ड. आइडेंटिटी नंबर थर्ड क्या होता है यहाँ से, सिंस a प्लस बी मल्टीप्लाई विद a माइनस बी वी गेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 ए, ये हो गया 2 इक्वल टू ए अंडर रूट 3 इक्वल टू बी, तो 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर मीन्स 3 इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 minus under root 3 is the required answer. So we see the next example. Rationalize the denominator 5 upon under root 3 minus under root 5. Solve. कैसे हम इसको रेशनलाइज करेंगे 5 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5. तो पहले हम इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर निकालेंगे. अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 इस डिनोमिनेटर है, तो इसी डिनोमिनेटर हमको रेशनल नंबर में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा रेशनलाइजेशन फैक्टर, ये माइनस है तो प्लस करेंगे, डिनोमिनेटर को देंगे माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 5 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 तो लिखेंगे मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 इक्वल 5 मल्टीप्लाई विद दिस 5 इंटू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5. अब यहाँ पर 5 इंटू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 लिखेंगे, करेक्ट है, लेकिन इसका मतलब ये हो रहा है कि 5 सिर्फ अंडर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अंडर 5 के साथ नहीं, तो हम यहाँ पर लगाएंगे ब्रैकेट अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई विद अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5. ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दोनों की मीनिंग सेम है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बोलो, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो क्या होता है यहाँ से बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर थर्ड, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा यहाँ से 5 इंटू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई विद अंडर रूट 3 मीन्स ए स्क्वायर अंडर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 होल स्क्वायर इक्वल 5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 3 होल स्क्वायर मीन्स 3 माइनस अंडर रूट 5 होल स्क्वायर मीन्स 5 इक्वल टू 5 इंटू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 3 माइनस 5 माइनस 2. इक्वल यहाँ पर माइनस 2 डिनोमिनेटर है, तो हम इसको क्या करेंगे, जो माइनस साइन नेगेटिव साइन इसको पॉजिटिव में ला लेंगे. डिनोमिनेटर है इसको 5 माइनस 5 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 is the required answer. We see the next example. Example number 20. Rationalize the denominator of 1
upon 7 plus 3 under root 2. So how can I rationalize the denominator? 1 upon 7 plus 3 under root 2. अब इसका हमको रेशनलाइजेशन फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो 7 प्लस 3 अंडर रूट 2 डिनोमिनेटर हो रहा है, तो प्लस हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन 7 प्लस 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई विथ 7 माइनस प्लस का माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 इक्वल क्या होगा, यहाँ से 1 मल्टीप्लाई विथ दिस, तो 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन 7 प्लस 3 अंडर रूट 2 इंटू 7 प्लस 3 अंडर रूट 2 इंटू 7 माइनस 3 अंडर रूट 2। अब यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है, तो आइडेंटिटी नंबर थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ से, सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन 7 स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, क्योंकि बी का वैल्यू 3 अंडर रूट 2 है। यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन 7 स्क्वायर मिस 49 माइनस 3 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर का मीनिंग है यहाँ से 3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, तो 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन 49 माइनस 3 3 जा 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन 49 माइनस 9 2 जा 18। ये 18 कैसे आ जाएगा, इसको हम देख लेते हैं, 3 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 2 होगा, 3 3 जा 9 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 अंडर रूट 4 मिस 2, तो 18 आएगा कि नहीं आएगा, तो हम इसको कट कर देते हैं, हो जाएगा 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन 49 माइनस 18 9 माइनस 8 1 4 माइनस 1 3 इक्वल टू 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन 31 is the required answer of this question. So तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं, कोई क्वेश्चन दिया है कहीं पर, तो कोई भी फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर में उसके डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर होता है, तो उसको हमको डायरेक्ट चेंज करना पड़ेगा उसके डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर्स में। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो, बुक में जो क्वेश्चन है उसको भी प्रैक्टिस करो और होमवर्क कंप्लीट भी करते जाओ, तब अभी आपको समझ में आएगा। सो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।